Welcome back to my channel. Today we are diving into one of the most fascinating chapters of Class 12 English, the interview by Christopher Sylvester. Have you ever thought about how interviews rule our world? From film stars to authors, from leaders to scientists, everyone has faced the power of an interview. But here is a twist. While interviews have help us know the truth about people, many famous writers actually dislike them, calling them an intrusion into their private lives. So, in this video, let's unfold the story of interviews, their history, their impact, and why they are both admired and feared. This chapter is divided into two parts. The first part deals with the history of interview and its merits and demerits. The second part consists of an actual interview interviewed by Mukund Padmanabhan from the Hindu newspaper, and interview is Umberto Eco, a famous author and a university professor. So, before I begin reading the chapter, let me make you very clear about three terms which are non fictional writing and fictional writing, semiotics, and also about the book from where this chapter has been taken. Okay, this essay has been taken. The book is actually one famous book, Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day. Okay, the day of publication of this book. All the interviews mentioned in that book are of famous celebrities, and from beginning to the day of publishing, all the interviews are collected. It is an anthology. Anthology is a large collection of like poems, prose, or any other writing. Okay, anything of the same category are collected, then that book is known as anthology. Okay, and second term I would like to explain is fictional writing and non-fictional writing. So fictional writing, what is fiction? That is based on imagination. So basic purpose of writing a fictional work is to amuse the reader, and in the same way you can say the examples are stories, novels, and plays. Okay, on the other side we have non-fictional writing. The purpose of writing non-fictional writing is to share information or facts. Okay, and examples of non-fictional writing can be biographies, essays, reports, interviews. Okay, and semiotic is the study of signs and symbols and their interpretation. For example, red light is a sign, okay, is a symbol, and the action for which on a traffic light, if the red light is there, the symbol is red light, and that can be interpreted as to stop moving of vehicle or walking. Okay, so now let's begin the first part of this chapter. I will be reading and then explanation will be done. Part 1. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their life, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. So, it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods, and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth, and in its practice an art. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had just a horror of interviewer, and he never consented to be interviewed. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success
in silencing all such people with much satisfaction and amusement. So, the first part tells us about the history of interview, when it started, and the two perspective of an interview: the interviewer, one who asks questions, and the interview, the one who answers those questions, and merits and demerits of an interview. Okay, so here are people, those who despise it, hate it. Why? Because they think it is an intrusion into their privacy. Okay, लोगों को लगता है कि ये उनकी निजता का हनन हो रहा है, यहाँ पर घुसपैठ हो रही है उनके अपनी प्राइवेट लाइफ में. तो the example which are given is of V.S. Naipaul on the first part. V.S. Naipaul who feels a wound, okay, given by interviewer. And the other example is given of Lewis Carroll, okay, who said he had an horror of interviewer. Okay, so ये जो दो लोगों के नाम दिए हैं और इनका जो वक्तव्य है या जो इन्होंने कहा है इंटरव्यू के अगेंस्ट, वो सब चीज़ें आपको अपने आंसर में मेंशन करनी है. तो प्लीज़ इसको मार्क करते जाइएगा, राइट, क्योंकि तभी आपका सॉलिड आंसर बन पाएगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person. My person means me. As an assault, and just as much merits punishment. It is cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it." Yet Kipling himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interviewee, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. ठीक है, तो अभी आपने पहले V.S. नायपॉल का देखा स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बाद लुइस कैरोल का देखा, ठीक है, सेकेंड इन द लिस्ट. नाउ द थर्ड वन इज रुडयार्ड किपलिंग, हु थिंक्स इट इज अ क्राइम. His wife even said that in her diary she mentioned that it is her day was wasted, okay, because of two reporters who came from Boston. And then we have the view of H.G. Wells, who think it is a ordeal. It is an ordeal, okay, difficult situation to be handled. And then we have Saul Bellow, Joseph Stalin, who think that it is something like suffocation, okay, something heavy kept on their windpipe. They are not able to breathe properly. So these people were against interview, though ironically they themselves have given and taken several interviews of famous celebrities, and yet they hate it. Okay, so there are 5 on the list. You can mention them in your answer wherever it is required. Now, the last part of this first part, the last portion, which is very important, questions are taken from this part, so please pay attention. Yet, despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written, "Almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence." ओके, तो अभी तक जितने लोग थे उन्होंने अगेंस्ट बोला, इसके बावजूद एक ये भी फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, कि दुनिया में जितना भी ज्ञान व्याप्त है, ठीक है, जितनी भी जानकारी, जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स इंटरव्यू है. कैसे? ये एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरा आदमी उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, और ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये पूरी प्रक्रिया सारे ज्ञान को इधर से उधर सर्कुलेट कर रही है पूरी दुनिया में. ठीक है, आज के ज़माने की बात हो रही है, मतलब जब ये बुक लिखी गई थी उस ज़माने में, और अभी तो है ही. अब तो हमारे पास इतने सारे तरह का मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है, ऑडियो है, वीडियो है,
पॉडकास्ट है, हर जगह आपको इंटरव्यू सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ अभी हो रहा है और इसलिए इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉलेज गेन करने का, राइट। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पार्ट में, जो कि है एक एक्चुअल इंटरव्यू। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. Umberto Eco is a professor at the University of Bologna in Italy, had already acquired a formidable reputation of a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetics, before he turned to writing fiction. Literary fiction, academic text, essays, children's book, newspaper articles. His written output is staggeringly large and wide-ranging. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual stardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. ठीक है, तो ये था इनका इंट्रोडक्शन इनके बारे में, जो अपने फेमस होने के पहले से ही एक बहुत प्रोलिफिक राइटर रह चुके हैं। जो यूनिवर्सिटी है वो इटली में है, वहाँ पे वो एक प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर रहते हुए उन्होंने बहुत सारा नॉन फिक्शनल वर्क प्रोड्यूस किया है, लिखा है, और वाइड रेंज है उनके, ठीक है, वर्क्स की। मीन्स वो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल राइटिंग्स लिखते हैं, बच्चों का लिटरेचर लिखते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल उनके छपते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे, मीन्स फिक्शनल राइटिंग भी कर रहे हैं। और इस फिक्शनल राइटिंग करने के बहुत पहले ही वो फेमस भी हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा उन्होंने किस एज में फिक्शनल राइटिंग शुरू की और इसकी वजह से वो और ज़्यादा फेमस कब हुए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, Mukund. The English novelist and academic David Lodge once remarked, I can't understand how one man can do all the things he Eco does. ठीक है, अब उनसे पूछ रहे हैं कि कैसे आप इतनी सारी चीज़ें कर पाते हैं, ओके। और उन्होंने रेफरेंस लिया है डेविड लॉज का, कि डेविड लॉज कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंसान इतना सारा वर्क कैसे लिख सकता है। अब उम्बर्टो इको, देखिए इंटरव्यू का क्या होता है कि इंटरव्यू जो आप पढ़ते हैं तो आपको जो वर्क उसने लिखा है, जिस वजह से वो सेलिब्रिटी फेमस हुआ है, वो तो आप ऑलरेडी जान ही रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो इंस्पिरेशन क्या है, ठीक है, वर्क इथिक्स क्या है, उस पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव क्या है, रीज़न क्या है, बहुत सारी उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, ठीक है। और उससे हम जो, मतलब आप और हम जो अब इंटरव्यू को देखते सुनते या पढ़ते हैं, तो हमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और उस पर्सन की पर्सनैलिटी तो सामने आती ही है, राइट। तो यहाँ पर उम्बर्टो इको जो आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, देखिएगा आप, बहुत हम्बली वो आंसर देते हैं, ठीक है। Maybe I give the impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing. Mukund, which is Umberto Eco. Now that is more difficult to explain. I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels. Even my books for children are about non-violence and peace. You see, the same bunch of ethical philosophical interest. ओके, तो वो कहते हैं हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसा इंप्रेशन दे रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क लिख रहा हूँ, बट मेरा जो वर्क है वो मेरी सिंगल जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, फिलॉसफी है, उसको लेकर के चलती है। इवन आप अगर एग्जांपल दूँ तो मेरे बच्चों के लिए, जो मेरे बच्चों का जो वर्क है, मीन्स जो लिटरेचर मैंने बच्चों के लिए लिखा है, वो भी मेरा नॉन वायलेंस और पीस आइडियोलॉजी का जो पार्ट है उसको लेकर उसी ट्रैक पर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ लिख रहा हूँ तो मैं बहुत सारा अलग अलग चीज़ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ एक ही ट्रैक से जुड़ा हुआ है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, डू यू नो what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. Similarly, we have a lot of empty spaces in our lives. I call them interstices. Say you are coming over to my place, you are in an elevator, and while you are coming up I am waiting for you. This is an interstice, an empty space, ठीक है। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी आइडियोलॉजी पे वर्क करता हूँ और मेरा एक सीक्रेट भी है, इस दुनिया में बहुत सारा खालीपन है, ठीक है, खालीपन इन द सेंस कि अगर एटम्स के बीच में जो गैप है, जो एम्प्टी स्पेस है, उसको हटा दें तो ये पूरी दुनिया सिमट कर एक मुट्ठी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, फिस्ट के बराबर हो जाएगी। इसी तरह का एम्प्टी स्पेस हमारे लाइफ में भी है। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं उन सारे कामों के बीच में छोटे छोटे गैप मिलते हैं, और अगर हम उन गैप में भी काम करें, ठीक है, कुछ प्रोडक्टिव वर्क करें, और भी चीज़ें हम कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक फनी एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, तो इससे आप उनकी ईजी गोइंग पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हैं कि जैसे आप मुझसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है, लाइक यू कम टू मीट मी हियर इन दिस, ही हैज़ मेंशन इन हिज आंसर, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू एंड यू हैव टेकन द एलिवेटर, द लिफ्ट, ओके, और ऊपर आने में जितना टाइम लगता है उतनी देर में मैं ऊपर आपका वेट कर रहा हूँ, मैं एक पेज लिख लूँगा, ठीक है, मैं अपना राइटिंग कुछ काम कर लूँगा। मतलब इतना प्रोडक्टिव इंसान को होना पड़ेगा, तब जाकर ये अचीवमेंट आपको मिलती है। ये हमको उनके इंटरव्यू से पता चलता है, ठीक है। एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन इंटरव्यू। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस while waiting for your elevator to come up from the first to the third floor. I have already written an article. Okay, laughs. तो यहाँ पे इनका आंसर कंप्लीट होता है और हमें पता चलता है कि उनका सीक्रेट क्या है। तो ये जो इन्होंने जो इंटरस्टाइसिस का एग्जांपल दिया है, ये तो हम लोग भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते, तो इसको एक थंब रूल बना सकते हैं और वी कैन ऑल्सो फॉलो इट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it, and it is marked departure from the regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adopted an informal approach, or is it something that just came naturally to you? ठीक है, अब वो कहते हैं कि आपका जो नॉन फिक्शनल वर्क है वो औरों से बहुत अलग है, ठीक है। औरों का जो वर्क होता है, दूसरों का जो वर्क है, वो बहुत ही बोरिंग और ड्राई टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि नॉन फिक्शनल है, उसमें कुछ भी मज़े के लिए नहीं है, अम्यूजमेंट के लिए कुछ नहीं होता, सब कुछ फैक्ट बेस्ड है, और लोग जिस तरह से उसको लिखते हैं, पेश करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक एवरेज रीडर को मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ आपके वर्क में ऐसा क्या है जो, मतलब ये जो आपकी अप्रोच है राइटिंग की, ये अलग है औरों से, और ये कैसे आपके अंदर है? मतलब आप टारगेट करके लिखते हैं ऐसा कुछ, या आपके अंदर ये नेचुरल तरीके से आता है? Which Murtrico answers, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusions. You, on the contrary, told the story of your research, even including your trials and errors. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि यहाँ से ये पोर्शन है, इस आंसर के इस पोर्शन से ये बताना चाहते हैं कि जो इनकी जो विधा है, जो इनकी लिखने का जो तरीका है, वो ऐसा है कुछ कि ये नरेट करते जाते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर थीसिस लिखने की बात की जाए, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग थी नरेशन की वो यहीं से हुई थी, तो एग्जाम्पल ये उसका ही दे रहे हैं। थीसिस लिखी जाती है जब कोई रिसर्च करता है, तो रिसर्च स्कॉलर क्या करता है, क्वेश्चन लेता है, एक प्रॉब्लम लेता है, ठीक है, और उसका एक संभावित समाधान जिसे कहते हैं, ठीक है, एक जो प्रोबेबल आंसर उसका हो सकता है वो लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर बनाया, और फिर जो क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचने की जर्नी है, वो रिसर्च, तरह तरह का डेटा कलेक्शन, ठीक है, जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, पहुंचने की पूरी जर्नी, वो आपकी स्टडी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, सब कुछ किया, पहले प्रॉब्लम ली, हाइपोथेसिस बनाया उसका, ठीक है, कि ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है इस प्रॉब्लम का, और उसके बाद वहाँ क्वेश्चन से आंसर तक पहुँचने की पूरी जर्नी करते 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 उसमें गलतियाँ भी होती हैं, उसको सही भी करते हैं, फिर अगला रिसर्च करते हैं, फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो जो सब कुछ करने के बाद एक फाइनल आंसर, एक फाइनल जर्नी का अकाउंट बन के तैयार होता है, उसी को हम कहते हैं डिसर्टेशन, ठीक है। तो एक नॉर्मल, एक जनरल जो रिसर्चर है वो क्या करता है, वो अपना पूरा परिमार्जित, पूरा रिफाइंड डिसर्टेशन बनाते हैं, ठीक है। उसमें वो अपनी एरर्स को हटाते जाते हैं और अपनी उसको कॉम्पैक्ट करते हुए जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रखते रखते अपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक की पूरी जर्नी को मेंशन करते हैं। लेकिन वो बहुत रिफाइंड होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, और इसीलिए शायद कई बार बहुत बोरिंग भी हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन्होंने क्या किया था, उमर्ट्रिको ने, इन्होंने यहीं से अपना नरेशन का, आप कह सकते हैं, आर्ट अपनी खोजी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी रिसर्च के बारे में स्टडी किया, रिसर्च जो प्रॉब्लम थी उसके बारे में स्टडी किया, उसका जो आंसर उन्होंने सोचा था, ठीक है, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, उसको डिसाइड किया, और इन दोनों के बीच में जो जर्नी थी, उस जर्नी को पूरी तरीके से ओरिजिनली मेंशन किया,
उसके ट्रायल और एरर्स को भी बताते हुए। तो जो इनके प्रोफेसर थे उनको ये इनका आइडिया अच्छा लगा, और हालांकि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सीधे इनकी रिसर्च डिसर्टेशन की फाइल को एज अ बुक पब्लिश करा दिया, मतलब इनका डिसर्टेशन सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ से इनको रियलाइज हुआ कि हाँ, दिस इज द वे अ स्टोरी शुड बी टोल्ड। At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done, by telling the story of the research. This is why my essays always have a narrative aspect. And this is why probably I started writing narratives novels so late, at the age of 50 more or less. I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. I started writing novels by accident. I had nothing to do one day, and so I started novels, probably satisfied my taste for narration. इनके अंदर एक हंगर थी, उसको सैशिएट किया इन्होंने। एक दिन बैठे बैठे यूं ही, जब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, फ्री टाइम में नॉवेल लिखना शुरू किया, और इनकी जो एक हंगर थी, जो एक बहुत इनके अंदर एक नरेशन की जो आर्ट थी, वो अंदर शोर मचा रही थी, उसको इन्होंने बाहर निकाला। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं अपने फ्रेंड का। और इन्होंने लगभग 50 साल की एज में नॉवल लिखना शुरू किया और फेमस नॉवलिस्ट बन गए, मेयरली राइटिंग 5 novels. Okay, now next question. Talking about novels, from being a famous academician, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. ठीक है, आपने नॉवल लिखे 5, और साथ में उससे पहले ही आपने बहुत सारे, लगभग 20 से भी ज़्यादा नॉन फिक्शन, मुकुंद, over 40, among them a seminal piece of work on semiotics. But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he is a novelist. He is a novelist. Does that bother you? अच्छा, तो आप कहते हैं कि आपने 40 से भी ज़्यादा वर्क लिख रखे हैं, लेकिन अगर मैं किसी इंसान से, किसी भी लोगों से, मतलब ये पूछूं लोगों से आकर कि उम्बर्टो इको के बारे में, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, वो तो एक नॉवलिस्ट हैं। क्या ये चीज़ आपको हैरान करती है? इतना सारा आपने नॉन फिक्शनल वर्क लिखा है और थोड़ा सा आपने फिक्शनल वर्क लिखा है, लेकिन आप उस थोड़े से वर्क के लिए जाने जा रहे हैं, तो क्या ये बात आपको हैरान करती है? येस, because I consider myself a university professor who writes novels on Sundays, it is not a joke. I participate in academic conferences and not meeting of pen clubs and writers. I identify myself with academic community. But okay, if most people have read only the novels, laughs and shrugs, I know that by writing novels, I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with such stuff, with this stuff on semiotics. ठीक है, वो कहते हैं हाँ, ये बात मुझे हैरान करती है, ठीक है, कि मैंने इतना सारा वर्क नॉन फिक्शनल लिखा है और सिर्फ 5 नॉवल लिखकर मैं एक नॉवलिस्ट कहलाता हूँ। ठीक है, ये मुझे परेशान करती है ये बात, लेकिन ठीक है, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, इस तरीके से मैं ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच रहा हूँ, तो इट्स ओके। ठीक है, और वो बताते हैं कि वो अपने आप को इंगेज करते हैं अपने जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा, और नॉवल तो उनका बस साइड वर्क है जो वो सिर्फ संडेज को करते हैं। ठीक है, और वो पेन क्लब होता है, वो क्लब जिसमें राइटर्स और पोएट्स मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, डिस्कशन होते हैं, ठीक है, आइडिया शेयर होते हैं। पेन क्लब 1921 में फॉर्म हुआ था और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन गैल्सवर्दी। यहाँ पे ऑथर ने पेन क्लब का मेंशन किया, तो मैंने आपको बता दिया। ये पेन क्लब वो अटेंड नहीं करते थे, उम्बर्टो को अटेंड नहीं करते थे, वो अपनी कॉन्फ्रेंस, अपनी जो यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस होती थी, मीटिंग्स होती थी, उनको अटेंड करते थे। मतलब उनका नॉवल अपने लेवल पे अपना एक पर्सनल वर्क था जो वो लिखा करते थे संडेज को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंद, which brings me to my next question. The Name of the Rose is a very serious novel. It is a detective yarn of one level, but it also delves into metaphysics, theology, and medieval history. Yet it enjoyed a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? वो कहते हैं कि आपका जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज बहुत ही सीरियस नॉवल है। ठीक है, डिटेक्टिव इसमें यार्न है, डिटेक्टिव यार्न मीन्स मनगढ़ंत कहानी बना रखी है, साथ में नॉवल है तो थोड़ा सा इमेजिनेशन भी है उसमें, साथ में आपने इसमें मेटाफिजिक्स का भी यूज़ किया है, थियोलॉजी भी मेंशन है, ओके, मेडिवल हिस्ट्री का भी रेफरेंस है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं और इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। तो क्या लगता है आपको, ये बात भी आपको हैरान करती है? बॉटरी को कहते हैं नहीं, मुझे नहीं करती है। जर्नलिस्ट
are puzzled, and sometimes publisher. And this is because journalists and publishers believe that people like trash and don't like difficult reading experiences. Consider there are 6 billion people on this planet. The Name of the Rose sold between 10 to 15 million copies. So in a way I reached only a small percentage of readers. ठीक है, वो कहते हैं नहीं, ये बात मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स जो कि ये उम्मीद करते हैं कि एक जनरल, एक आम आदमी इस तरह के वर्क को कम पढ़ना चाहेगा। तो अगर इस तरह की बुक जो कि डिफ़िकल्ट टॉपिक पर बनी है, लिखी गई है, वो पॉपुलर होती है, तो हाँ, ये उनको ज़रूर सरप्राइज़ करता है, ठीक है, पजल करता है। जैसे कि नेम ऑफ द रोज़, इसकी 10 to 15 मिलियन कॉपीज़ बिकी, ठीक है। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन ये वो रीडर हैं जो एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल रीडर्स कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कोई हमेशा इसको नहीं पढ़ना चाहता। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर समय कोई आदमी इंटेलेक्चुअल रीडिंग ही करे। देर आर टाइम्स व्हेन पीपल लव टू रीड लाइट लिटरेचर, ठीक है। वो अपना भी एग्जाम्पल देते हैं, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वॉन्ट दिस। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी इधर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट, बट नॉट ऑल डे, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइम होता है जब इवन मैं भी ये सोचता हूँ कि कुछ हल्का सा मज़ेदार सा टीवी सीरियल या कुछ ऐसा देखूँ, बजाय कोई सीरियस रीडिंग करने के, राइट। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इंटरव्यू, मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history? अच्छा, तो ऐसा कभी क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये मेडिवल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ आपका नॉवल था इसलिए फेमस हुआ? अब मुकुंद उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि उनके नॉवल के सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या, और यहाँ पर वो क्या उनको बताते हैं कि ये एक मिस्ट्री है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कोई बुक कब फेमस होगी, कब नहीं फेमस होगी, राइट। लेट्स सी व्हाट हिज आंसर इज। Umberto Eco, that's possible, but let me tell you another story, because I often tell stories like a Chinese wise man. My American publisher said while she loved my book, she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. So I was given an advance for 3,000 copies, but in the end it sold 2 or 3 million in the US. A lot of books have been written about the medieval past far before mine. I think the success of the book is a mystery. Nobody can predict it. I think if I had written The Name of the Rose 10 years earlier or 10 years later, it won't have been the same. Why it worked at that time is a mystery. अब यहाँ उम्बर्टो को कहते हैं कि किसी बुक के सक्सेसफुल होने के पीछे मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, और कोई भी इस बात को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या चीज़ एक बुक को सक्सेसफुल बनाएगी। हाँ, इन मल्टीपल चीज़ों में टाइमिंग उसका कंटेंट, ठीक है, और हाँ, राइटर का लक, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और हो सकता है कि कोई जो बुक लिख रहा है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो पब्लिक को पसंद आ जाए। कोई भी बुक फेमस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे इसलिए फेमस हुई, ठीक है। अगर यही बुक जो इतनी फेमस हुई है इनकी द नेम ऑफ द रोज़, हो सकता है 10 साल पहले या 10 साल बाद आती तो कहानी कुछ और होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये इंटरव्यू ख़त्म होता है। आपने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा उसमें आपने समझा इंटरव्यू के हिस्ट्री, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, साथ ही साथ 4-5 जो फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, सेलिब्रिटीज़ थे, उन्होंने इंटरव्यू के अगेंस्ट में क्या कहा, ठीक है। और लास्ट में इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस, ठीक, वन मैन आस्किंग द क्वेश्चन एंड द अदर आंसरिंग देम। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में आपने उम्बर्टो इको की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स देखे, जाने, समझे, और इंटरव्यू से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये हमको पता चला, ठीक है। साथ ही बुक की सक्सेस के बारे में, उम्बर्टो इको के स्टाइल के बारे में, उनकी अपनी अप्रोच क्या थी उसके बारे में। अब लेट्स डिस्कस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्योंकि आपका चैप्टर डिवाइडेड है टू पार्ट में, तो आपके क्वेश्चंस भी दोनों पार्ट से कुछ इस तरीके से आ सकते हैं। पहले पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं मोस्टली मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एन इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, लोग उनके अगेंस्ट क्यों हैं, लोग उनके सपोर्ट में, सपोर्ट में तो इसलिए क्योंकि वो पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है, ठीक है, बहुत पॉपुलर मीडिया है कम्युनिकेशन का। तो
इसलिए, लेकिन यहाँ पे जो डीमेरिट्स हैं उसमें आप ये सारे जो एच.जी. वेल्स, वी.एस. नायपॉल, ठीक है, और जितने भी बाकी 2-3 लोग और भी हैं, उन सब ने जो जो चीज़ें कह रखी हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आपका फैक्ट बेस्ड आंसर बन जाएगा, राइट। और सेकंड पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली उम्बर्टो इको के आइडिया, स्टाइल, सक्सेस के बारे में है, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, ठीक है। द इंटरव्यू, क्वेश्चन नंबर 1, द इंटरव्यू इज ऑफन considered an intrusion into the privacy of celebrities, discussed with reference to the opinions of H.G. Wells, Saul Bellow and others, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर you can take as a reference and from there you can form your answer. Keywords will be intrusion, unwarranted, loss of privacy and assault, crime. H.G. Wells saw it as crime, immoral, okay, felt like being wounded, negative reaction, celebrities dislike probing, personal space, okay। तो अभी तक जितना डिस्कस हुआ है उसके बेस पे आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं और अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल टेक, why does Umberto Eco feel that his work in semiotics is overshadowed by his novels? क्या रीज़न था कि उनका नॉवल ज़्यादा, वो एज ए नॉवलिस्ट ज़्यादा फेमस हुए बजाय नॉन फिक्शनल वर्क, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उनकी एक तो इसमें आप जो मैंने कीवर्ड दे रखे हैं, एकेडमिक स्कॉलर, 40 स्कॉलरली वर्क, सेमियोटिक्स, एस्थेटिक्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नॉट पॉपुलर विद कॉमन रीडर्स, द नेम ऑफ द रोज, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, ओवरशैडोड, फेम ड्यू टू नॉवल, novels more remembered, academic work neglected, plus his narrative style, okay। narrative style को जरूर मेंशन करिएगा क्योंकि यही उनके सक्सेस का रीज़न भी था। और साथ में वो कोई बुक फेमस क्यों होती है वो सब इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, द इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एलोबरेट विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट, ओके। सो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था उस फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट पोर्शन था, राइट, वहाँ से ये लाइन ली गई है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसमें आपको इम्पोर्टेंस दिखाना है इंटरव्यू का, ठीक है, जो विधा है जर्नलिज्म की, जो एक तरीका है जर्नलिज्म का, वो कैसे क्यों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा इसके सपोर्ट में अपना आंसर। तो आप उसमें वन मैन आस्किंग द क्वेश्चन वाली लाइन कोट कर सकते हैं यहाँ पर, और साथ में इसके सपोर्ट में इसके जो भी मेरिट्स हैं वो सब मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस आंसर को फ्रेम करने में जो कीवर्ड्स होंगे, इफेक्टिव टूल, मॉडर्न जर्नलिज्म, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडर्न जर्नलिज्म, डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ब्रिंग्स ट्रुथ टू पब्लिक, important source of information, transparency, personality plus thinking of interviewee, widely used, most common form of communication, right? So all these are very concrete points you can use in your answer. Next one, question number 4, how does Umberto Eco describe his writing style and way of thinking working? So keywords are interstices, small gaps of free time, converts into productive writing, non-violence, work ethic, no wasted time, clarity, simplicity, avoids pompous language, academic precision, flexible style, seriousness plus humor, okay। तो यहाँ पर उनकी जो स्टाइल थी लिखने की और जो उनकी आइडियोलॉजी थी उस सबको फ्रेम में अपने लेंगे आप और अपना आंसर लिखेंगे। और साथ ही साथ उनका जो पर्सनैलिटी का एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको इंटरव्यू पढ़ने के बाद मिलता है जो कि है ह्यूमरस, ओके। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, कहानी सुनाने का एग्जाम्पल देते हैं, वो सब कुछ अपनी नैरेटिव, उनकी जो स्टाइल है वो सब कुछ अपने आंसर में आप मेंशन करिए यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज एकोज स्कॉलरली बैकग्राउंड हेल्प हिम इन राइटिंग नॉवेल्स लाइक द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। तो जो उनकी स्कॉलरली बैकग्राउंड है, जितने वो पढ़े लिखे थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो ये जो उनका स्कॉलरली बैकग्राउंड था वो उनके इस नॉवल में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा फैक्ट बेस्ड आप लिख पाएंगे चीज़ों को, और सिंस इट इज़ अ नॉवल तो आप उतनी वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन उसमें पहुंचा पाएंगे। कीवर्ड्स हैं डीप नॉलेज, मिडिल एजेस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, सेमियोटिक्स, डिटेक्टिव फिक्शन, स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, डेप्थ प्लस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये इसमें डिटेक्टिव नॉवल भी था ये, ठीक है, प्लस हिस्ट्री भी थी, तो बहुत लोगों को तो शायद बहुत अच्छा लगा, ऐसी मूवी अगर आती है तो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑफ फिक्शन, स्कॉलरली रिसर्च, अपील्स टू बोथ एकेडमिक्स एंड जनरल रीडर्स। तो ये सारे वर्ड्स, कीवर्ड्स अपने आंसर में आप यूज़ करिए और एक बहुत अच्छा सा आंसर आप लिखकर तैयार करिए। और आपके एग्जाम में इससे अलग क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आए, जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं कहीं पर भी आपका, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो,
हर एग्ज़ाम में आप अगर इन सारे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं तो आप आराम से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, राइट? सो आई वुड से इन द एंड that study hard, get good marks, and like, share and subscribe my channel, my video. And also if you have any query, any doubt, ask me in the comments. I would love to help. Thank you. Bye bye.